जियो और सूत्र है जियो और Distinguished members on the dais, distinguished guests, ladies and gentlemen, and all the young generation of IMA. I have no words really to thank IMA for inviting me here this afternoon and for honoring me and giving me the privilege of spending some time with all of you. It has been a great honor, and I'm very humbled by some of the lovely accolades that have been spoken by the gentlemen that came here before me. I do realize that I'm not worthy of any of them, but I thank them all from the bottom of my heart. Thank you very much. I was sent a letter by Shri Kumar Mangalam Birla ji, who is a dear friend. Indeed, the entire Birla family, including Rajshri ji, has always been very closely associated with us from the time of my father, and we have maintained a wonderful relationship. And when his letter came inviting me here this afternoon, it was something that I could never refuse. And that's how I find myself here. But really, I was more curious to know how a management institute would want to meet a film actor. Films and management don't really go together. For many, many years, say about 50 or 60 years ago, when cinema was in its nascent age and stages in India, it was looked upon as something that was very infra-dig. Children from good homes were not allowed to associate themselves with cinema. And I remember my early years as well, because every time I wanted to go and see a film, my parents would first go and see the film, wet it, and after they approved of the film, only then were we allowed to go in and watch the film. But look how wonderfully Indian cinema has progressed through all these years. And I find myself filled with great pride to be invited here today to a management institute wanting to interact with people from the film industry. Cinema has always been a great mirror to what happens in our country, both socially, morally. Its popularity now has not just been within Indian shores, but gone out to the other countries and the other parts of the universe. And I don't know whether this is good for India or not, but for many, Indian cinema has almost become a parallel culture. And I think that that is, in a sense, an acknowledgement of what Indian cinema means to many other faiths, religions, countries. And I do feel that one of the main reasons that brings people together for cinema is the fact that when we sit inside a darkened hall to watch a film, we never ask what the caste, the creed, the color, the religion of the person sitting next to us is. Yet we watch the same film. We cry at the same emotion. We laugh at the same jokes. We sing the same songs. In this fast, disintegrating world, perhaps cinema is one such medium that integrates and brings people together rather than putting them aside. And for me, I think this is a great achievement, and I feel a great sense of pride to be associated in a very small manner with the Indian cinema. I was curious to know how management works, and one of the reasons that I accepted to have a one-on-one with you was not so much for me to be able to answer your questions, but to really gauge what kind of questions a management institute
would want to ask a film actor. So I'm here for your benefit, and if there are some questions that any of you may want to raise, I shall be very happy to answer them. Thank you so much once again for having me here and for this wonderful welcome. Thank you. Thank you, Mr. Bachchan. Friends, in your kit bags, you have a notepad. Now that house is open to interaction, I would request that you send your questions to the volunteers, which we would request Mr. Bachchan to address. But before, thank you. But before we initiate the floor participation, I'll seek 2 small indulgences of Mr. Bachchan. As you all know, IMA is completing 50th years this year, and we have captured the 50-year-long journey of IMA in a coffee table book. Mr. Anuj Kothari, the honorary editor of Indore Management Association's publication, has worked very hard to बात दें और हमारी पीड़ा से मुक्त करें। तो महाराज श्री ने कहा कि भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं है, और उन्होंने जो उनको मंत्र दिया वो प्रतिदिन कहा करती थी। अब हमें बहुत अच्छा लग रहा, हम स्वस्थता महसूस कर रहे हैं। तो वास्तव में कहते हैं इनके आशीर्वाद में, कहते हैं ये मंत्र हैं, तंत्र हैं और यंत्र हैं, सब कुछ ये है। अगर ये मुख से कुछ बोल दिया करते हैं तो वो शब्द इनके मंत्र हो जाया करते हैं। ये अपने हाथों से आशीर्वाद दे दिया करते हैं तो वो यंत्र का काम करते हैं, क्योंकि यंत्र में क्या होता है, रेखाएं ही तो होती हैं। और अगर इनसे ये कुछ दे दिया करते हैं हाथों से, अगर मिट्टी ही दे दें तो वो तंत्र का काम कर जाया करता है। इनके बाबत में क्या बोलूं, कहते हैं हम तो दुनिया का खुदा इनको ही कहते हैं, हम तो दुनिया का खुदा इनको ही कहते हैं, जिन्हें शक हो तो करें और खुदाओं की तलाश। ये बात और है कि इंसान बन के आए, बनना ये दुनिया के खुदा ही तो हैं। यहाँ पर रजत जयंती दीक्षा महोत्सव गुरुदेव अंतर्मना मुनि से प्रसन्न सागर जी महाराज का मनाया जा रहा है। रजत अपने आप में कह रहा है कि रज लगा लो उनके चरणों की तो तुम भी तर जाओगे। किनकी रज, जो कि जिन बन गए हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो परम पद में स्थित हो गए हैं, वे परमेश्वर बन गए हैं। तुम भी उनकी रज लगा लो, तर जाओगे। वो पप्पू परम पुंज बन गया जो स्वयं तो प्रकाशित हुआ ही और जगत को भी प्रकाशित करने लगा। आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के चरणों की रज लगा करके उसने स्वयं तो प्रकाशित हो रहे हैं और जगत को भी प्रकाशित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, वे महाराज सच्चे अर्थों में आज के इस भौतिकवादी युग में, जिस समय सब बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हों, जिस समय गुरुकुलों का अभाव हो, जिस समय वेस्टर्न कल्चर का बोलबाला हो, इंटरनेट ईमेल का युग हो, ऐसे समय में उन बच्चों को संस्कार देना, एक अध्यापक या एक विद्वान भी जल्दी से बच्चों को संस्कृत की वो लाइनें वो प्रतिक्रमण याद नहीं करा सकता। अंचेमी पूजेमी वंदामी नमम स्वामी दुख खो कमक खो बोइलाओ सुगय गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मच्छम। जहाँ जहाँ उनका चातुर्मास हुआ, उस पूरे मुर्शिदाबाद से लेकर के पूरे पूर्वांचल में, आंध्रा में, कर्नाटक में और यहाँ पर राजस्थान की धरा पे इस अजमेर में और अब जयपुर में, आप जरा उन परिवारों के उन छोटे बच्चों से तो पूछिए, उनमें वो संस्कारों को डाल दिया। वास्तव में वो संस्कार प्रणेता के रूप में अंतर्मना मुनि से प्रसन्न सागर जी महाराज है। जब जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि मैं समाधि पूर्वक, संलेखना पूर्वक, समाधि पूर्वक कैसे मरण को करूं। उसमें भी सिद्धहस्त हैं गुरुदेव अंतर्मना मुनि से प्रसन्न सागर जी महाराज। जब धुलियान में थे, एक व्यक्ति
बुजुर्ग व्यक्ति, उसका स्वास्थ्य खराब था, उसने यही कहा मुझे गुरुदेव के चरणों में ले चलो, और गुरुदेव के चरणों में जैसे ही लाए और उसके वहाँ संस्कार किए और मात्र 2 घंटे के भीतर और उसकी संलेखना समाधि हो गई। ऐसे सिद्धस्थ समाधि कराने में प्रवीण और तो और समाज के प्रति जागरूक, जहाँ पूरे मुर्शिदाबाद की 7 नगरों की समाज अलग अलग थी, सन्मति नगर, पाकुड़, धुलियान, जियागंज इत्यादि इत्यादि, उन सब नगरों की समाज को एकजुट एक झंडे के तले कर दिया। आज उसी का प्रभाव है कि जब भी समाज में कोई काम होता है 7 नगरों की समाज एक साथ निर्णय करती है और पूरी नगरों की समाज आज यहाँ पर विद्यमान है। मानवता के वास्तविक उद्धारक गुरुदेव अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, और मुझ कली को गुरुदेव ने ही, कली उनके ही चरणों में पली बड़ी और वहाँ से बढ़ते बढ़ते महासागर के पास आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज के पास पहुँच गई। और ये कली अगर आज पीयूष सागर बनी है तो वो आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज के द्वारा ही खिली हुई है, और इस संसार में इस चक्रव्यूह को, अष्ट कर्मों को नाश करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। जो कुछ भी है आपके सामने अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की ही देन के रूप में, स्वयं उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हूँ। इसी के साथ अपनी पंक्तियों को विराम देता हूँ, क्योंकि उधर स्वर्ग में हलचल हो रही है, क्योंकि धरा पे कुछ नया घटित हो रहा है। उस स्वर्ग से लाने का काम मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो अपने गुरु चरणों में पहुँच गया हूँ, और मैं मुनि श्री प्रगल्भ सागर जी के पास पहुँचा देता हूँ कि वे ही इसे धरा पर ला सकते हैं, उस महावीर को। ओम नमः जय बिछड़ी याद पर है। भगवान ऋषभनाथ की, वेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, विश्व धर्म की। और आज का विषय रजत जयंती है, मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का है, तो उनके बारे में सभी लोगों ने अनेक अनेक भावनाएं रखी है। मेरे जीवन की भी शुरुआत पहला केसलोच मुनि श्री ने कानपुर में आचार्य श्री की आज्ञा से किया, क्षुल्लक दीक्षा का। उसके बाद में ब्रह्मचारी अवस्था में भी मुनि श्री का निर्देशन मिलता रहा आचार्य श्री की आज्ञा से। उसके बाद के आशीर्वाद दो तो उन्होंने कहा कि बन जाओ इनके जैसे, लेकिन तब भावना नहीं हुई। लेकिन मुनि श्री का ऐसा वात्सल्य रहा कि बार बार कहते रहे, तरुण सागर जी आए तब भी, कि बन जाओ तुम, अभी बढ़ जाओ। और एक बार 16 तारीख को, 16 जनवरी को प्रज्ञा सागर जी ने कहा कि अगर अभी नहीं बन पाए तो कभी नहीं बन पाओगे। मुनि वचन अनुलंघनीय। उसी समय मैंने शास्त्र में पढ़ा था कि मुनि के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। और पुलक सागर जी महाराज का भी बहुत वात्सल्य रहा कि वो हमेशा मुझे मुनि अवस्था में देखना चाहते थे। और प्रसन्न सागर जी ने जिम्मेदारी ली कि कभी भी कहीं तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी। जैसा बहनों ने बताया कि मुनि श्री के पास वचन सिद्धि है, तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई तकलीफ आए मुझे याद करना। बाहर में, बिहार में, भारत में कहीं भी जाओ, अगर तुमको कहीं तकलीफ आए तो मैं बैठा हूँ। और तुरंत मेरे मन में आया कि अब बढ़ जाना चाहिए। गुरुजी से निवेदन किया 17 तारीख को, और गुरुजी ने सहस्त्र मुझे स्वीकृति देके और आगे बढ़ाया। और ये प्रसन्न सागर जी ने हिम्मत दी मुझे, और आप सब लोगों का वात्सल्य मिला गुरुजी के आज्ञा से। बासल दिवाकर आचार्य गुरुवर श्री 108 पुष्पवंत सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का आज रजत दीक्षा जयंती महोत्सव है, जिसको तुम लोगों की भाषा में कहें तो सिल्वर जुबली है ना, सिल्वर जुबली है। तुमने शादियों की मनाई होगी, और इनकी सिल्वर जुबली को देखकर कुछ कुछ को तो हो रहा है कि हमारी सिल्वर जुबली कैसी मनेगी। आप विचार करके रखना। मैं तो आचार्य भगवान से इतना ही कहूँगा कि पूज्य श्री सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली, ये सारी जुबली मने या ना मने, लेकिन जिस दिन मेरी समाधि जुबली हो गई उस दिन मेरा जीवन सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूज्य श्री से भी इतना ही कहूँगा। प्रसन्न सागर जी की आज 23/4/13 और 23/4/13 की उनकी जुबली, जो उनकी रजत दीक्षा जयंती है, वो अपने आप में बड़ी सार्थक है। 23 को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 3
5 महाव्रत के धारी हैं कि नहीं वो? 4 को अगर देखे तो 4 तप को कर रहे हैं कि नहीं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, 4 आराधनाओं का भी पालन कर रहे हैं और 13 प्रकार का चारित्र का भी पालन कर रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा रजत जयंती का और कोई दिन सौभाग्यशाली नहीं होगा कि जहां पर पंच परमेष्ठी को प्राप्त कर लिया, पंच परमेष्ठी की आराधना कर रहे हैं, 5 महाव्रतों को धारण कर लिया, 4 आराधनाओं को कर रहे हैं और 13 प्रकार का चारित्र कर रहे हैं। भगवान से इतना ही कहूंगा मुनिश्री की दीक्षा जयंती पर कि भगवान श्री की सिल्वर जुबली हुई है, रजत जयंती हुई है, गोल्ड या जो भी हो, भगवान श्री की आगे से आगे यात्रा पूर्ण हो और उनको जीवन में वो उपलब्धि प्राप्त हो। आचार्य भगवान से इतना ही कहूँगा, आज हम लोग जो भी हैं आचार्य भगवान, सभी लोग हम लोगों को देख रहे हैं, लेकिन नींव के पत्थर अगर आचार्य भगवान हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शिखर की ध्वजा को तो देखते हो, बीज वृक्ष के फल को तो देखते हो, अगर बीज में दम है तो फल के दाम अच्छे आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे आचार्य भगवान कहते हैं कि आज उनके पास जो भी है क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। ख्याल करके अभी मैं पुलक सागर जी के साथ आ रहा था, किसी ने पूछ लिया उनसे कि भगवान श्री वहां पर कितने 100-200 साधु इकट्ठे होंगे क्या? भगवान श्री ने कहा हम पांडव हैं, कौरवों की तरह इकट्ठे नहीं होते हैं। ख्याल करके रखना, पांडव हैं कौरवों की तरह इकट्ठे नहीं होते हैं। 5 पांडव अगर इकट्ठे हो जाएं तो निर्वाण को भी चले जाया करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे आचार्य भगवान का बड़ा प्यार है, प्रेम है उनके चरणों में, और एक उनकी ही आवाज कि प्रमुख सागर तुम्हें अपने बड़े भाई की बसगांठ में आना है, उनकी आवाज पहुंची और मैं दौड़ा चला आया और मुझे यह सौभाग्य मिल गया। इससे और कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा। आचार्य भगवान के पूज्य मुनिश्री की दीक्षा जयंती पर बहुत बहुत नमन करते हुए मैं आपकी बात को यही मौन करता हूँ। आगे क्या हुआ आचार्य भगवान अपने मुखाग्नि से। श्री देवादेव परम चमत्कारी श्री कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। कम से कम आप लोग तीर्थंकर परमात्मा के जन्म महोत्सव को मनाने आए हैं और एक महात्मा के दीक्षा महोत्सव को मनाने आए हैं। आपके दिल में और दिमाग में जरा प्रसन्नता की खुशी आना चाहिए। चांद ना होते तो ये सितारे ना होते और ये प्रसन्न सागर ना होते तो ये नजारे जयपुर में ना होते। यथा नाम तथा गुण के धारी, व्यक्तित्व और कर्तृत्व के धनी। आज हमारे अग्रजक प्रसन्न सागर महाराज जी का गुरु कृपा का दिवस है। आज उनकी आत्मा में परमात्मा के स्वरूप को प्रादुर्भाव पूज्य आचार्य श्री के द्वारा हुआ था। रत्न तो सभी हुआ करते हैं, पुष्पदन सागर हो चाहे अभिनंदन सागर हो या विद्या सागर हो, सभी बागी हर बगिया के फूल सुंदर होते हैं, परंतु पुष्पदन सागर के आचार्य श्री के शिष्यों में आदमी मार्केट में जाता है, क्या परचेस करता है? जिसकी जो चॉइस होती है। मैं तो ये कहता हूं आचार्य पुष्पदन सागर के शिष्यों में परमात्मा की आराधना और साधना में यदि कोई संत है तो मैं तो कहता हूं प्रसन्न सागर जी। और वह उनकी यह विशेषता है, स्वयं आराधना करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त से परमात्मा की आराधना में संतों के द्वारा स्वयं अनेक भक्तों को लगाते हैं। प्रसन्न सागर महाराज मधुर स्वर से जब स्तोत्रों का पाठ कराते हैं, मिश्री को कहीं से भी टेस्ट किया जाए तो कैसी होती है? मीठी होती है। मैं कहता हूं मिश्री मीठी कैसी होती है? जिसने खाई है वही मिश्री का आस्वादन जानता है। जो भी संतों के चरणों में यदि समर्पण से आता है, निश्चित है प्रसन्न सागर एक मिश्री जैसे कहीं से भी खाओ, ऊपर से देखो या नीचे से के देखो, अंदर से देखो या बाहर से देखो,
बहुत प्यारे प्यारे हैं। और मैं तो 14 तारीख से जब से समागम में मिला हूं, मैंने अपने जीवन के 14 वर्ष में बाह्य रूप से इतना प्रसन्न नहीं हुआ हूं जितना प्रसन्न सागर जी और पुलक सागर जी के साथ रह के मैं प्रसन्न हूं। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रसन्न सागर महाराज कहते हैं, अमिताभ के नाम से हरिवंश राय बच्चन जाना जाता है और अभिषेक बच्चन को जाना जाता है। हम ये चाहते हैं कि गुरु तो गुरु ही होता है, उसकी उपमा और तुलना नहीं होती है, परंतु आचार्य पुष्पदन सागर के जितने भी शिष्य हैं वह खूब अपना धर्म प्रचार करें। परंतु मैं तो परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं, हमारे बड़े भाई प्रसन्न सागर परमात्मा की आराधना में इतने प्रसिद्ध हो जाएं कि जैसे भक्ति में हनुमान प्रसिद्ध हुआ था, ऐसे यह इतनी भक्ति करें कि भक्तों के मनोरथ जो भी इनकी भक्ति करेगा स्वयं पूर्ण हो जाएंगे। अंत में यही अपनी बात को कह के समाप्त करूंगा कि इनकी गिनती महावीर जयंती पर हुई थी। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जब तक यह भगवान महावीर के लघुनंदन बने हैं, वह जब तक महावीर नहीं बने तब तक भक्तों का उद्धार करते हुए, जिन शासन की प्रभावना करते हुए दीर्घायु हो, वह परमात्मा की आराधना करें, महात्मा की साधना करें और जिन धर्म की प्रभावना करें। मैं यही अपनी मांगलिक भावना कहता हूँ। महावीर भगवान की, आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की, रजत दीक्षा जयंती महोत्सव की पावन प्रसंग है। मेरे अग्रज भ्राता, मेरे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनके आह्वान पर हम संत लोग कोई 800 किलोमीटर चलकर आया, कोई 400 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर चल करके आया। मैं इतना ही कहूंगा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि हमारे गुरुजी हमारे नाम से जाने जाएं। मेरा गुरु इतना हल्का नहीं है कि वह अपने शिष्यों के नाम से जाना जाए। हरे ध्यान रखिए, ऋषभ देव अपने नाम से पहचाने गए तो नाभि राय अपने नाम से पहचाने गए। ऋषभ देव ने कोई नाभि राय का नाम अमर नहीं किया, नाभि राय स्वयं कुलकर के रूप में पैदा हुए थे। ध्यान रखिए, महान बाप की निकृष्ट औलाद तो देखी होगी आपने, और निकृष्ट बाप भी देखा होगा महान औलादों का, लेकिन बाहुबली ऋषभ देव के वंश में ध्यान रखना, ऋषभ देव महान पिता के महान पुत्र थे। और एक बात ध्यान रखना, हम भी महान। हमने कहा तुम सबकी तुलना पुष्पदन सागर से मत करो, तो बोले उन्होंने 25 साल में 25 मुनि भी नहीं बना पाए। हमने कहा भाई ये उनका सिलेक्शन है, नहीं बना पाए तो नहीं बना पाए। हमने कहा श्रीमान जी बहुत देर से बोल रहा, हमने श्रीमान जी आपकी शादी हो गई? बोले हाँ हमारा शादी को 40 साल हो गए। हमने कितने बच्चे हैं? बोले 2। हमने कहा बस 40 साल में 2 ही? अरे हमने कहा पुष्पदन सागर महाराज ने तो, और पुष्पदन सागर का एक एक शिष्य 100 मुनियों पर भारी पड़ जाता है। इस निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध इतना सा कर रहा हूं, गुरुदेव पुष्पदन सागर महाराज सामने कम बच्चे दिए हैं, लेकिन उनका एक एक बच्चा शेर सा दहाड़ता है। जिस समाज में जाता है उस समाज की नींद हराम कर देता है, न सोता है न समाज को। किसने कहा ये? यही निवेदन कर रहा हूं, इसलिए बोलते ना भैया पुष्पदन के शिष्य आ रहे हैं। पुष्पदन के शिष्य का आने का मतलब है कि हाथी को बांधना। अरे हाथी का बच्चा हाथी ही तो होगा, कोई खच्चर थोड़ी होगा। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, गुरुदेव ने हम शिष्यों को, वाकई में एक माँ भी अपने बच्चे का इतना ध्यान नहीं रखती होगी जितना ध्यान गुरुदेव ने हम बच्चों का रखा है। और यही कारण कि 15-16 साल में तरुण सागर जी 11-12 साल में, प्रज्ञा सागर जी 12-13 साल में, सौरभ सागर जी छोटी, जब पुलक सागर महाराज साहब जब ब्रह्मचर्य अवस्था में जब भिंड में आए थे, इतने नाजुक चुपचाप मौन डरे से चुपचाप कोने में बैठे थे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा ब्रह्मचर्य अवस्था का नाम पारस। बोले बेटा पारस आपकी ड्यूटी, तुम प्रसन्न सागर जी के साथ रोज तुम आहार में जाना,
मेरे साथ पहले दिन आहार में गए, थाली हाथ में ली, डर लग रहा था, हाथ कप रहे थे, रोटी का गिलास दे रहे, धोखे से पूरी हाथी थाली उनसे छूटी और थाली पूरी। नियम है कि हमको अंतराय करना चाहिए, लेकिन हमने अंतराय नहीं किया। हमने कह दिया अंतराय कर लेता तो पूरा इसका आगे का जीवन, हमने कहा कोई बात नहीं। फिर वो बोलते महाराज श्री आपने अंतराय, हमने कहा देखो तुम पहली बार आया था, यदि मैं अंतराय करता फिर तुम कल से आहार देना ही बंद कर देता। और उस दिन के बाद से जो उनके अंदर हिम्मत आई, और वाकई में गुरुदेव ने बहुत कम समय में इतना निखारा कि आज वो खुद निखर के प्रखर हो चुके हैं। इतना सा निवेदन अनुरोध कर रहा हूं। 25वीं दीक्षा जयंती की 25वां वर्ष प्रारंभ हुआ है, और वाकई में 25 साल मेरे बड़े सुख के आनंद के गुजरे हैं। और वो मेरे आनंद के नहीं गुजरे हैं, गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा हर दिन त्योहार सा गुजरता है, मेरा हर दिन आनंदमय हो जाता है, मेरा हर पल सुख शांति अमन चैन का बन जाता है। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, और यही कह रहा हूं कि जितने लोग दूर दूर से इस 25वीं दीक्षा जयंती के पावन प्रसंग पर संयम की अनुमोदना करने के लिए, इस करपात्री पदयात्री की अनुमोदना करने के लिए जो यहां तक आए हैं, जो यहां पर हैं, उन सबको, जो बाहर व्यवस्थाओं में लगे हैं, उन सबको, जो जा चुके हैं, उनको तहे दिल से मंगल आशीष प्रदान करता हूं। उन सबका जीवन पुण्यमय, धर्ममय, आनंदमय, सुख शांतिमय, सम्यक्तमय हो। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं गुरु की छांव में कि हे परमात्मा, सभी उन भक्तों का दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि पूर्वक मरण हो, और सबको, हम सबको भगवान जिनेंद्र के गुणों की प्राप्ति होवे। गुरु के अनंत अनंत उपकारों को कभी चुका नहीं सकता। गुरु के आशीर्वाद को अपने दामन में संजो करके जब तक निर्वाण ना हो जाए तब तक गुरु का पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। इन पंक्तियों के साथ अपने अल्फाजों को समेट रहा हूं। जिस गुरु ने मुझको बोध दिया, मैं उनका गौरव गाता हूं। गुरु पुष्प दंतिका चेला में आचरण की बात बताता हूं। हो इतना सा निवेदन कर रहा हूँ। गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, बहुत वात्सल्य बरसाया। गुरुदेव से क्षमा याचना करते हुए, अनंत प्रणाम करते हुए, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। वार करें, अपनी शंकाओं पर वार करें, अपने संदेहों को तोड़ने की कोशिश करें, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी ना करें, अपने अहंकार को तिलांजलि दे दें। कितनी शान से, अहंकार से भर के इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति चला था कि आज मैं जैनियों के गुरु, महागुरु को हराने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचते इसको ये समझ आई कि मैं कहाँ आ गया, और उसका मान विकलित हो गया। और मान विकलित होता है तो रास्ता खुल जाता है, और जहाँ रास्ता खुलता है वहाँ दम्मक सम्यक दर्शन का दरवाज़ा खुलता है, और जहाँ सम्यक दर्शन का दरवाज़ा खुलता है वहाँ समझ का दरवाज़ा खुलता है, और समझ का दरवाज़ा खुलता है तो पूरा कपड़ा तन से खुल के वही समर्पित हो जाता है। निवेदन कर रहा हूँ आपसे, किस एंगल से देखोगे महावीर? राजस्थान के सिरमौर मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब पधार चुके हैं। करतल ध्वनि के साथ हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारा है, अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारा है। श्रीमान जी आज हमारे नगर पधारे हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ अंतर्मना रजत दिन दीक्षा महामहोत्सव पर
आचार्य परमेश्वर श्री पुष्पदंत सागर जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करने आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के श्री चरणों में आशीष का अमृत पीने के लिए आ रहे हैं। रजत दीक्षा महोत्सव मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज साहब का उनके गुरु के आशीर्वाद के साथ में मनाने का एक शुभ दिन भी है। गुरु अपने शिष्य के लिए स्वयं चल के आए, आशीर्वाद दें और उनके रजत दीक्षा समारोह में भाग लें, ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए मैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री पुष्पदंत जी सागर जी महाराज साहब का मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और राजस्थान का प्रथम सेवक होने के नाते राजस्थान प्रदेशवासियों की ओर से मैं उनका राजस्थान की इस पावन धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनका सानिध्य मिलता रहे मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान को भी, ये मेरी हार्दिक भावना रहेगी, मेरी भी, सब आप सबकी और प्रदेशवासियों की। और मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज साहब 25वां दीक्षा का अवसर भी आपने सही चुना है और जो गुरु शिष्य के मिलन जो हुआ है वो मिलन भी मैं समझता हूँ कि लोगों के मानस पटल पर अंकित हो गया है। मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर था, जब मैंने वहाँ गुरु शिष्य मिलन की फ़ोटो देखी अखबार के अंदर, तो मेरे मानस पटल पे वो अंकित हो गया हमेशा के लिए। पुष्पगिरी परिवार सद्य श्री गहलोत साहब को सम्मान प्रदान करना चाहता है। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज आप लोग की प्रेरणा से, हाँ एक बार जरा पुष्पगिरी परिवार आया है यहाँ पर, आइए। आचार्य गुरुवर पुष्पदंत सागर जी महाराज की प्रेरणा से राकेश जी मध्य प्रदेश में मानव कल्याणकारी तीर्थ पुष्पगिरी का सृजन हो रहा है और उस तीर्थ परिवार के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पीछे से वे सम्मान प्रदान कर रहे हैं सद्य से गहलोत साहब को। मूलचंद जी पीछे बगल में जाके खड़े हुए, सब लोग अपना एक वो लेंगे, माला पहनाइए, लीजिए। सब लोग बगल में पीछे जाइए ना, खड़े हुए, एक फोटो लीजिए, पत्रिका में देना है फोटो। जाइए पीछे जाइए, सब लोग पुष्पगिरी परिवार के जाइए, खड़े होइए, एक फोटो ले लीजिएगा ताकि मध्य प्रदेश के अखबारों में ये फोटो जा सके। अंतर्मना रजत दीक्षा महामहोत्सव के इस अनूठे आयोजन में जिन्होंने नींव का पत्थर बनकर के आयोजन को गौरव और गरिमा दी है, आकाश की ऊंचाई दी है, मैं उन सब के आवाज लगा रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि उनके हाथों में प्रतीक चिन्ह देकर हमारे उन जो महिमावान कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान करें। मैं आवाज लगा रहा हूं हमारे महोत्सव के शिरोमणि राजेश जी राव का साहब, जो आसाम बंगाई गांव से हमारे बीच में आए। आप लोगों से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ। कर्मचारी जल्दी जल्दी करिए आप। आवाज लगा रहा हूं कुलदीप जी चौधरी साहब, हमारे स्वागताध्यक्ष महोदय। आवाज लगा रहा हूं अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी जैन साहब। आप ताली बजाने में कंजूसी ना करें। आवाज लगा रहा हूं अध्यक्ष सुभाष जी जैन साहब। आवाज लगा रहा हूं महामंत्री द्वय आशीष जी पांड्या एवं अरुण जी नावका साहब को। महामंत्री द्वय आशीष जी पांड्या एवं अरुण जी नावका साहब को आवाज लगा रहा हूं। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं हमारे महोत्सव के मुख्य समन्वयक बाबू कमल जी जैन साहब को। कमल बाबू जी जैन को आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आए। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं हमारे कोषाध्यक्ष द्वय अंकेक्षक श्रीमान अरुण जी पापड़ीवाल साहब और अमित जी ठोलिया साहब को। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं जो किसी पद पर नहीं थे लेकिन जिन्होंने बहुत काम किया, ऐसे भाई योगेश जी जैन साहब, एक ऐसा नौजवान जिसे मैं यस मैन कह सकता हूं। जोरदार तालियों के साथ भाई योगेश जैन। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं पूज्य मुनिश्री के बहुत अरसों से जो संगपति होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं श्रीमान संजय कुमार जी जैन और श्रीमान सोहनलाल जी सेठी साहब दीमापुर से। सोहनलाल जी सेठी साहब दीमापुर और संजय जी जैन दिल्ली को आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आए। और इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं हमारे इंदौर से पधारे डॉक्टर संजय जी जैन साहब को कि वो भी आए, जो हमारे इस महोत्सव के संयोजक रहे हैं। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं बाबूलाल जी ठोलिया साहब,
जो हैदराबाद से हमारे बीच में हैं, जो हमारे महोत्सव के संयोजक रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ बाबूलाल जी ठोलिया साहब। इसी क्रम में आवाज लगाऊं प्रचार मंत्री अमित जी अजमेरा साहब को कि वो भी आए। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सूर्य प्रकाश जी जैन साहब को, एसपी जैन साहब को भी आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे स्वागत को स्वीकार करें। अमित जी। अब मैं उस आदरणीय सांस्कृतिक समिति में जिन्होंने बहुत ही मनोज्ञता के साथ कार्य किया, विनोद जी छाबड़ा मोनू को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। विनय जी सोगानी सचिव, अब मैं उस शख्सियत को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। आपने देखा होगा यह मंडल विधान की रचना परम पूज्य अंतर्मना पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के रजत जिन दीक्षा महोत्सव को संपूर्ण निर्देशन प्रदान किया, संपूर्ण रचना की, इस महा महोत्सव को एक स्वरूप प्रदान किया और जीवंतता के साथ में हमने इस पूरे महोत्सव को जिया और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। और इसके पीछे जिस शख्सियत का नाम है वो है बाल ब्रह्मचारी भाई श्री तरुण जी जैन इंदौर। मैं चाहता हूं कि श्रद्धेय श्री मुख्यमंत्री साहब बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी को सम्मान प्रदान करें। और एक ऐसा ही नाम, दो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे कहा जाना चाहिए, दर्पण और मोनू, ये दोनों ही मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पूज्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की संपूर्ण वैयावृत्ति, उनकी सारी दैनिक दिनचर्याओं को संचालित करने में ये बच्चे ने बहुत ही योगदान दिया। दर्पण और मोनू जी को बुला रहा हूं मैं। प्रीतेश भाई श्री प्रीतेश जी। मोनू जी छतरपुर से जो हैं, मोनू जी अगर यहाँ पर उपस्थित हो तत्काल आ जाएं और मोनू जी का सम्मान भाई श्री प्राप्त कर लें। आशीष जी आप प्राप्त कर लीजिए मोनू जी का सम्मान। योगेश जी कविता सारडा मुंबई, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछिका का विमोचन करते हुए योगेश जी कविता सारडा मुंबई, और आज पिछिका भेंट करने के पावन अवसर पर एक बहुत सुंदर बहुत बड़ी घोषणा वो कर रहे हैं। पदमपुरी में संत साधुओं के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए, श्रमण श्रमणियों के लिए एक बहुत सुंदर अंतर्मना नवदा भक्ति अक्षय कक्ष का निर्माण कर रहे हैं और उस निर्माण के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए की राशि आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी के परम आशीर्वाद से दी है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आचार्य श्री को पिछिका दे रहे हैं। जैन हलचल देखते रहें, रोजाना आपके मोबाइल पे भी आएगा जैन हलचल।